ایک لائن دو ملک اور کچھ سوال جو دلوں کو ہلا دے۔ ایز اے پاکستانی میں نے گروک اے آئی سے کچھ سوال پوچھے، ایسے سوال جس میں میں یہ ثابت کر سکوں کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ غلط کیا ہے۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ گروک اے آئی نے کوئی بھی ایسا جواب نہیں دیا جو انڈیا کے خلاف ہو۔ کیا گروک اے آئی بائسڈ ہے؟ کیا انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے؟ کیا انڈیا پانی کی جنگ شروع کر چکا ہے؟ یا یہ سب ایک چھپا ہوا کھیل ہے جو ہمیں دکھتا نہیں؟ آج ہم 7 موسٹ کنٹروورشل سوالوں کے جواب دیں گے گروک اے آئی کی مدد سے، اور ایک سچ جو آپ کو حیران کر دے گا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان بنے تھے، ایک لائن نے دو ملکوں کو جنم دیا، لیکن ساتھ ہی جھگڑے بھی بڑھ گئے۔ کشمیر کا مسئلہ، پانی کا بٹوارا، ٹیررزم کے الزام، یہ سب مسئلے پاکستان اور ہندوستان کے رشتے کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ باہر سے یہ سب پاور اور پولیٹکس کا کھیل لگتا ہے، لیکن کیا یہ سب صرف ایک کہانی ہے یا پھر یہ کوئی ایک چھپا ہوا سچ ہے جو ہمیں نہیں بتایا گیا؟ آج ہم 7 سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ جواب ہیں گروک اے آئی کے، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ جس کے پاس تقریباً دنیا کا ہر بک اویلیبل ہے۔ پہلا سوال، کیا انڈیا نے جموں اور کشمیر پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اور کیا انڈیا نے UN کی پلیبسائٹ یعنی کہ عام انتخابات کے ریزولوشن کو نظر انداز کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے گروک اے آئی کا۔ گروک کے پاس تقریباً ہر رپورٹ، ہر آرٹیکل اور دنیا کی ہر بک کا ایکسس ہے۔ ایلون مسک جو ایکس کمپنی کے مالک ہیں، انہوں نے گروک اے آئی جب لانچ کیا تو یہ بتایا تھا کہ یہ اے آئی ماڈل کسی بھی چیز کو سینسر نہیں کرے گا اور صاف جو سچ ہے وہی بولے گا۔ تو چلیے ہم گروک اے آئی سے یہ سوال آج پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا انڈیا نے جموں اور کشمیر پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا ہے؟ گروک اے آئی کا یہ کہنا ہے کہ 1947 میں جموں اینڈ کشمیر ایک ریاست تھی جس پر راجہ ہری سنگھ حکومت کرتے تھے، جس پر کچھ قبائلی لوگوں نے حملہ کیا اور مہاراجہ نے انڈیا سے مدد مانگی۔ ہندوستان نے ان کی مدد تو کی، پر ان کی ایک شرط تھی کہ وہ انسٹرومنٹ آف اسیشن پر سائن کرے جس سے جموں اینڈ کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے۔ انڈیا کا اس پہ یہ کہنا تھا کہ یہ قانونی طریقے سے کیا گیا، کیونکہ جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو پرنسلی اسٹیٹس یعنی کہ جس علاقے پر راجہ مہاراجہ کی حکومت تھی، ان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ وہ انڈیا سے ملیں یا پاکستان سے، یا پھر آزاد رہنا بھی ایک چوائس دی گئی تھی۔ اس قانون کے حساب سے مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کو چنا، پر پاکستان اس بات کو نہیں مانتا۔ پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ کشمیر کے لوگوں کی رائے اس میں نہیں لی گئی۔ عام لوگوں سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ وہ انڈیا کو چنتے ہیں یا پاکستان کو۔ اس جموں اور کشمیر کے مدعے کو لے کر کنفلکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ مدعا UN نے اٹھایا، جس میں UN نے یہ ریزولوشن دیا عام انتخابات یعنی کہ پلیبسائٹ کیا جائے جو عام لوگوں کی رائے لے، پر UN نے کچھ کنڈیشنز رکھے۔ وہ کنڈیشنز پوری نہ ہونے کی وجہ سے پلیبسائٹ کبھی ہوا ہی نہیں۔ UN کی کنڈیشنز کے حساب سے انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی آرمیز وہاں سے نکالیں، اس کے بعد پلیبسائٹ ہو جو جموں اور کشمیر کے عام لوگوں سے الیکشن کروا کے ان کی رائے جان سکیں کہ وہ انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے اندر۔ پر دونوں ملکوں نے ان کنڈیشنز کو مانا ہی نہیں، لیکن اس پر انڈیا کا کچھ الگ ہی کہنا ہے۔ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ پلیبسائٹ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے عام انتخابات اپنے ملک کے اندر کروائے اور جموں کشمیر کے اندر بھی کروائے، جس سے انٹرنیشنلی یہ کنسیڈر کیا جائے کہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگ انڈیا کے ہی سٹیزنز ہیں، اور پاکستان UN کے ریزولوشن کو زیادہ مانتا ہے۔ تو کیا یہ عوام کا مسئلہ ہے یا پولیٹکس کا؟ یہ سچویشن ہمیں لے جاتی ہے ایک دوسرے بڑے سوال کی طرف۔ کیا انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کے عوام کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے؟ کیا کشمیر کا مقام بدل دیا گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ گروک اے آئی کے انالائسس کے حساب سے انڈیا نے 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کیا، جس سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئی اور 2 یونین ٹیریٹریز بنی۔ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کا انٹرنل معاملہ ہے اور UN ریزولوشن شملہ ایگریمنٹ کے بعد ارریلیونٹ ہے، اور پاکستان اس پر یہ کہتا ہے کہ یہ UN ریزولوشن کے خلاف ہے۔ پر انٹرنیشنلی لوگ کیا مانتے ہیں؟ یہ سوال بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پر کوئی رولنگ نہیں دی۔ کچھ لوگوں نے انڈیا کو صحیح بتایا، کچھ لوگوں نے پاکستان کو۔ پر کیا سچ میں یہ ایک وائلیشن تھی یا صرف ایک ڈومیسٹک مسئلہ؟ یہ چیزیں ہمیں تیسرے سوال کی طرف لے جاتی ہیں۔
जो कि शायद आपको हिला के रख दे। क्या इंडिया कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का जिम्मेदार है? ग्रुक एआई के मुताबिक 1989 से इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिसअपीयरेंसेस और टार्चर जैसे इल्ज़ाम लगते हैं। ह्यूमन राइट्स और यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडियन मिलिट्री AFSPA लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस लॉ के हिसाब से आर्मी को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। किसी पर शक हो, उस शक की बिना पर किसी को भी गोली मार सकते हैं। शक की बिना पर किसी के भी घर में बिना परमिशन के रेड कर सकते हैं। ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये एक एक्ट है जो इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। इवन के ये लॉ इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। इस कानून को बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कंट्रोवर्शियल बताया गया है। इसमें किसी को भी कहीं से भी उठाकर गोली मार सकते हैं, साफ साफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर सकते हैं, किसी को भी घर से उठाकर टॉर्चर कर सकते हैं, किसी को भी घर से उठाकर डिसअपियर कर सकते हैं। कश्मीर के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग इसको ब्लैक लॉ कहते हैं, यानी कि काला कानून। ग्रुप एआई के मुताबिक यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को AFSPA लॉ इम्यूनिटी देता है। इसका सबूत वो 2730 कब्रें हैं जिनका कोई नाम नहीं। अब इस पर इंडिया का ये कहना है कि ये कानून टेररिज्म के खिलाफ काफ़ी अहम है और इससे आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। पर यह बयान सिर्फ डिप्लोमेसी में ही अच्छा लगता है, क्योंकि असल हकीकत कुछ और ही है। ये बात है 2010 की। कश्मीर के इलाके मचल में 3 कश्मीरी लोगों को मार दिया जाता है। इन 3 कश्मीरियों के नाम थे शहजाद अहमद जो कि 27 साल की एज का था, शफी अहमद जो सिर्फ 19 साल का था और रियाज अहमद जो 20 साल का था। एक आदमी जिसका नाम बशीर अहमद था इन तीनों लोगों को जॉब का झांसा देता है और ये कहता है कि आपको 2000 रुपये डेली के हिसाब से दिए जाएंगे। उसके बाद ये 3 लोग काम के सिलसिले में बशीर के पास जाते हैं और बशीर उनको एक जगह पर ले जाता है जो LOC के पास है। जब उनके घर वाले पुलिस के पास गए और वहाँ पर मिसिंग्स की कंप्लेंट्स लिखवाई, उनके घर वालों ने ये बताया कि बशीर अहमद उनको जॉब के सिलसिले में ले गया था और उसके बाद वो नहीं लौटे। जब पुलिस ने बशीर अहमद से पूछताछ की तो ये सामने आया कि उसने 50-50 हज़ार में 3 लोगों को बेच दिया है। मगर किसको? ये सुनकर आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। बशीर अहमद ने इन लोगों को इंडियन मिलिट्री के हवाले किया था और बशीर अहमद इंडियन मिलिट्री का इन्फॉर्मर था। ये इंडियन ऑफिसर्स राजपूताना राइफल्स जो कि एक इंडियन आर्मी रेजिमेंट है उसके थे। वहाँ उन्हें फेक इनकाउंटर में मार दिया जाता है, ये कहकर कि वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे जो LOC के पास बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो बशीर अहमद और इन लोगों के दरमियान हुई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उससे साफ जाहिर हो गया कि ये सारे लोग फेक इनकाउंटर में मारे गए हैं। उसके बाद पुलिस ने 11 लोगों पर FIR की, जिनमें 9 आर्मी पर्सनल्स थे और 2 सिविलियंस। इसमें कोई छोटे मोटे आर्मी के लोग नहीं थे, बल्कि आर्मी के टॉप के लोग जैसे एक कर्नल और 2 मेजर थे। इन आर्मी ऑफिसर्स को इंडियन कोर्ट ने कोर्ट मार्शल भी किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। 7 सितंबर 2015 को आर्मी ने ये कंफर्म किया कि कल्प्रिट्स को सजा मिल चुकी है और इनको लाइफ सेंटेंस दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर 2010 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें 113 से 115 लोग तक प्रोटेस्ट के अंदर मार दिए गए थे इंडियन पुलिस और CRPF के जरिए। उसके बाद ही जाकर 2015 में इन कल्प्रिट्स को सजा सुनाई गई थी। 2017 में इन आर्मी ऑफिसर्स को रिहा किया जाता है और इन पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस लिए जाते हैं। इंडियन आर्मी कोर्ट का एक बहुत ही बचकाना फैसला सामने आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये 3 लोग पठानी कपड़ों में थे और मिलिटेंट्स पठानी कपड़ों में ही आते हैं। इस फैसले को कई ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। आर्मी का ये फैसला सिर्फ कपड़ों के बिना पर कैसे आ सकता है कि वो कौन से कपड़े पहने, अब उससे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द हैं या आम सिटीजन्स। ये स्टेटमेंट कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा था, ये स्टेटमेंट खुद इंडियन न्यूज चैनल्स पर आ रही। A military tribunal has given them bail, saying that the men who were killed were wearing Pathan suits, which are normally worn by terrorists. The shocking order has been met with complete disbelief and disappointment by the families of those killed. इस केस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। ये केस तो इतनी बड़ी अपराइजिंग की वजह से ही सामने आ सका और कोर्ट का वर्डिक्ट जो बाद में भले ही चेंज किया गया, इतनी बड़ी अपराइजिंग के बाद ही सामने आ सका। और उन सारे केसेस का क्या जो रिपोर्ट ही नहीं होते और इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो क्या ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में होते रहते हैं या सिर्फ ये एक आइसोलेटेड केस था? ये इंसिडेंट्स हमें ले आते हैं अपने सवाल नंबर 4 के ऊपर। कश्मीर के मुद्दों के अलावा भी कुछ मसले ऐसे हैं जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। चलिए पानी के झगड़े की कहानी सुनते हैं। ग्रुप एआई की एनालिसिस के मुताबिक 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान का लीडर अयूब खान और इंडिया के लीडर जवाहरलाल नेहरू इंडस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रीटी के ऊपर साइन करते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है। वर्ल्ड बैंक ने ये गारंटी ली कि इस कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इस ट्रीटी के हिसाब से वाटर की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की गई, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस ट्रीटी के हिसाब से 3 ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को दिए गए, जैसे कि रावी, बियास और सतलज, और पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स दिए गए, इंडस, झेलम और चनाब। अब इंडिया इन 3 रिवर्स जो पाकिस्तान को मिले हैं उनका पानी लिमिटेड यूज कर सकता है, ऐसे कामों में जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना या फिर इरिगेशन करना, लेकिन पानी को स्टोर करना इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। ग्रुप एआई का ये कहना है कि इंडिया को छोटे प्रोजेक्ट्स की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया को इस ट्रीटी के हिसाब से डैम्स बनाने की इजाजत नहीं है, और इंडिया ने बगलहार और किशन गंगा जैसे डैम्स बनाए हुए हैं। उस पर इंडिया कहता है कि इंडिया को छोटे प्रोजेक्ट्स करने की इजाज़त पहले ही दी गई है इस ट्रीटी के हिसाब से, और इंडिया का ये कहना है कि वर्ल्ड बैंक ने इसे कंफर्म भी किया है। उसके बाद भी पाकिस्तान को ये डर है कि इंडिया इमरजेंसी में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। तो क्या ये एक टेक्निकल झगड़ा है या फिर एक स्ट्रेटेजिक गेम? क्योंकि हमने इमरजेंसी की बात कर ली है, ये ले जाता है हमें 5वें सवाल की तरफ। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट का लेबल कई बार लगाया है, पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बात करता है तो इंडिया उसको सीरियसली लेता ही नहीं। ये रहा हमारा 5वां सवाल, क्या इंडिया ने पाकिस्तान की टेररिज्म कंसर्न्स को नज़रअंदाज किया है? चलिए जानते हैं कि ग्रुप एआई क्या कहता है। ग्रुप एआई के मुताबिक पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया उसकी कंसर्न्स खास तौर पर कश्मीर के ऊपर इग्नोर करता है और कश्मीर पर टेररिज्म के इल्ज़ाम लगाकर एग्रेशन करता है। उसका मिसाल हमने पहले ही देख लिया है, जो प्रोटेस्ट में 113 से 115 आम लोगों को मार दिया गया, और इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की गई 2016 में। इस पर इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जो इंडिया के मुताबिक मुंबई और पुलवामा जैसे अटैक्स का जिम्मेदार है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन 2021 का सीज फायर ये भी जरूर दिखाता है दोनों मुल्क अमन की राह पर भी चल सकते हैं। ये झगड़े पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मिसट्रस्ट को जरूर दिखाते हैं, पर क्या उसके अलावा भी कुछ और मसला है? ये चीज हमें हमारे छठे सवाल की तरफ ले जाती है, क्या इंडिया स्पिनेज में इन्वॉल्व है? स्पिनेज का मतलब होता है जासूसी। क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जासूसी करता है? ग्रुप एआई की एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का ये कहना था कि कुलभूषण यादव इंडियन नेवी ऑफिसर था। उसके अलावा रा जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका भी एक्टिव एजेंट है, और ये बलूचिस्तान और कराची में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और स्पाइंग कर रहा था। उसके बाद कुलभूषण यादव का एक कन्फेशन वीडियो भी सामने आता है, जिसमें वो सारे इल्ज़ाम कबूल करते हैं और ये भी मानते हैं कि वो रा के एजेंट हैं। और इसके अलावा कुलभूषण यादव ये भी इकरार करता है कि वो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की असाइनमेंट पर भेजे गए हैं। अब इस पर इंडिया का ये कहना था कि वो ईरान में रहते थे और एक बिजनेसमैन थे और आज से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जो कि एक बहुत ही डिप्लोमेटिक बयान है। तो क्या जाधव एक स्पाई है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? तो क्या ये सब कश्मीर, ह्यूमन राइट्स, पानी, टेररिज्म, स्पिनेज, आइसोलेशन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है? ग्रुप एआई की एनालिसिस के हिसाब से एक सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये झगड़े सिर्फ 2 मुल्कों के नहीं, इनकी जड़ों में कॉलोनियल पावर्स का साथ है। ब्रिटिश हुकूमत ने 1947 में पार्टीशन ऐसे किया कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहे। कश्मीर का मसला, इंडस का बंटवारा, हिंदू उर्दू डिवाइड, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा थे, जिससे साउथ एशिया में टेंशन रहे और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बना रहे। आज भी जब हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, शायद हम अब भी उसी खेल के प्यादे हैं जो किसी और ने शुरू किया था। तो क्या ये सच जो ग्रुप एआई ने सामने लाया हमें एक नई राह दिखा सकता है? अगर इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े किसी और के बनाए हुए हैं तो शायद हम एक नया मुस्तकबिल लिख सकते हैं। दोनों मुल्कों के लोग, चाहे वो बॉलीवुड के फ़ैन हों या उर्दू शायरी के शौकीन या फिर क्रिकेट के दीवाने, दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस पुरानी नफरत को पीछे छोड़ सकते हैं? क्या हम एक ऐसा साउथ एशिया बना सकते हैं जहां अमन और खुशहाली हो? आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही ग्रुप एआई की मदद से कुछ छुपे हुए सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।